Hello students, myself Hanish Bansal. Today in this video lecture we will discuss an important topic of class BSc which is also important for first grade, second grade, ACF and all other competitive exams. Our topic is double integration. द्विसमाकलन. It is an important topic for all competitive exams like first grade, second grade. It is the representation of double integration. F is a function of two variables, one variables, mostly two variables x and y, r and theta. dA is a small area or it is the limits of the functions. Our syllabus, it has two types in Cartesian form, Cartesian and in polar form, Dhruviya. If we use Cartesian form, then our function is fxy. Cartesian means function is in xy and dA is dx dy. अब dx dy here, it is the important that we will move from right side. It means important that integrate first with respect to y. We will move from right side. First of all, we will integrate with respect to y and second strips parallel to y axis. ये बड़े दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में जो पूरे चैप्टर को बड़ा इजी बनाते हैं. यदि dx dy इस प्रकार से दिया है तो मूव राइट से लगेंगे. राइट से करें तो पहले y आ रहा है इट मीन ये ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू y होगा और जो भी अपने आगे स्ट्रिप्स डिवाइडेशन करेंगे, पट्टियाँ विभाजन करेंगे, वो पट्टियाँ भी पैरेलल टू y रहने वाली हैं. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और इसी से यहाँ जो लिमिट मिलने वाली है पहले वो लिमिट होगी y की. वो तलोच ना तलोच एक्स की फॉर्म में या कॉन्स्टेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है या तलोच कॉन्स्टेंट भी हो सकता है. यहाँ कॉन्स्टेंट, यहाँ फंक्शन, दोनों तरफ फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं. और यहाँ जो लिमिट मिलने वाली है वो एक्स की मिलने वाली है इन कॉन्स्टेंट फॉर्म. ये और इफ़ वी यूज इन पोलर फॉर्म then function is r theta and dA is r d theta dr, not d theta dr, r d theta dr. And here the limit, first of all integrate with respect to r. First of all here is the limit of r and here is the limit of theta. Limit in form of theta in constant term. It means we can also say that here relation between Cartesian and polar form. Relation is if we put x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta and dx dy is equal to r d theta dr. Then we change Cartesian into polar and polar into Cartesian by putting these. x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta and dx dy is equal to r d theta dr. बेसिक तो इसका जो मेन है वो इतना ही है. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फिर अपने इनको और समझेंगे. पहले अपने बिल्कुल डायरेक्ट सिंपल एग्जांपल देखते हैं. इट इज योर फर्स्ट एग्जांपल 0 to 1 and 0 to 2 x plus y dx dy. It is the double integration 0 to 1, 0 to 2. Our function is Cartesian form x plus y dx dy. Move from right side mean first of all integrate with respect to y. इसमें एरिया जो बना हुआ है पहले से उसने फंक्शन बनाकर दिया है, लिमिट्स दी हुई हैं. जो स्ट्रिप्स का जो डिवाइडेशन होता है वो लिमिट्स फाइंड करने के लिए होता है. लिमिट दी हुई है तो इसमें स्ट्रिप्स तो डिवाइड करनी नहीं पड़ेंगी. dx dy. First of all integrate with respect to y. X is constant for y, so integration is xy plus y. Integration with respect to y is y square by 2 and it is the limit of y and it is the limit of x. Limit of y is 0 to 2.
Then after integrate with respect to x, limit 0 to 1 or dx. 0 to 1, it is the limit of y. So by putting at the position of y, first of all y is 2x, y is 2 square 4 by 2 2, then putting y is 0, all 0 with respect to x. Integration of 2x with respect to x is x square, because x square by 2 cancel, plus 2x, limit of x 0 to 1, by putting 1 plus 2 3 और 0 पुट करने पर 0. It is our first example. It is the basis of double integration. That function dA is area using in two forms, Cartesian and polar. If we use in Cartesian form, then fxy with respect to dx dy. It is the most important topics. Integrate with respect to y and strips parallel to y. It is depend upon its. इस पर डिपेंड करता है मूव टू राइट. फर्स्ट वाई आ रहा है तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड स्ट्रिप्स भी पैरेलल टू वाई रहने वाली हैं. और ये पोलर फॉर्म में हो जाएगा एफ आर थीटा आर डी थीटा डी आर. इट मीन वी प्लान व्हाट या वी चेंज कार्टेशियन इनटू पोलर एंड पोलर इनटू कार्टेशियन बाय यूजिंग एक्स इक्वल टू आर cos थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा एंड डी एक्स डी वाई इक्वल टू आर डी थीटा डी आर. नाउ वी विल डिस्कस आवर सेकंड एग्जाम्पल, which is the most important example of this chapter. बहुत important example है, क्योंकि ये जो example है ये 2 से 3 बार competition में पूछा गया है, जो example अपन करने वाले हैं. और इसी example के माध्यम से हम एक important concept भी clear करेंगे. और example जो है वो इस प्रकार से है. एग्जाम्पल जो है ये वो इस प्रकार से है, 0 से इनफाइनाइट h टू इनफाइनाइट e पावर माइनस वाई अपॉन वाई डी एक्स डी वाई. ये इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता रहता है ये. अब देखिए यहाँ पर डी एक्स डी वाई मूव फ्रॉम राइट, तो 2 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये जानने हैं. इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड जो पट्टियाँ विभाजन होगा स्ट्रिप्स पैरेलल टू वाई एक्सिस. बस यही 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं जो इस टॉपिक को बहुत अच्छे क्लियर करवाते हैं अपने. तो ये 2 पॉइंट्स. अब फर्स्ट पॉइंट पर ध्यान दें, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई. मीन मुझे इसका जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, और विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन बाहर हो नहीं पाएगा इसका. तो क्या करें, तो यहाँ हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. ये इसी टॉपिक को हम क्लियर कर रहे हैं. समाकलन के क्रम में परिवर्तन. ये डी एक्स डी वाई है तो मैं इसे डी वाई डी एक्स में बदल दूंगा. तो किस प्रकार से, इतना नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पर तो डी एक्स डी वाई तो ये दिख रहा है, लिमिट वाई के लिए है और ये एक्स की लिमिट है. और वैसे भी यहाँ एच आ रहा है, ये बताना ना, यहाँ एच आ रहा है तो ये लिमिट एक्स की नहीं हो सकती, तो 100% वाई की होगी. एक्स की लिमिट में एक्स नहीं आएगा. यहाँ लिमिट जो है वो x से है, तो इट मीन इट इज़ 100% श्योर दैट इज लिमिट ऑफ y. तो ये y की लिमिट है. अब मैं चेंज कैसे करूँगा ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, डी एक्स डी वाई तो डी वाई डी एक्स कैसे बनाया जाए, उसके लिए ये पूरा प्रोसेस हम देखते हैं. हेयर वी हैव ओनली 4 लिमिट्स, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू इनफाइनाइट, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू इनफाइनाइट. इन चारों का डायग्राम ड्रॉ करेंगे. जितनी भी शेप्स दी होंगी उन सब का डायग्राम बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल टू x इज ए लाइन, y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 0 इज y एक्सिस, y इज इक्वल टू इनफाइनाइट, y इज इक्वल टू इनफाइनाइट. यहाँ एक लाइन बनेगी इनफाइनाइट पर.
ये इस प्रकार से इनफाइनाइट तक वाई और एच इज टू इनफाइनाइट यहाँ बने लिए, मतलब ये इनफाइनाइट तक शेप चलेगी इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से इनफाइनाइट तक चलती जाएगी ये शेप दोनों तरफ। अब ध्यान से देख ले तो अपने पास 2 रीजन्स है, हेयर वी हैव 2 रीजन्स, तो अपने कौन सा रीजन यूज करें, पूरा करें ये वो अपने तो पता यहाँ से लगेगा इस दूसरे पॉइंट से। तो यहाँ डी वाई है, डी वाई का मीन जो है वो स्ट्रिप जो पट्टियाँ विभाजन हुई है वो पैरेलल टू वाई है, मतलब जो पट्टियाँ पैरेलल टू वाई मतलब इस प्रकार से हैं। अब देखिए पट्टियाँ शुरू कहाँ से हुई है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पट्टी का एंड होता है स्ट्रिप का। पट्टी का स्टार्टिंग क्या है, y इज इक्वल टू एच, तो यहाँ पट्टी का स्टार्टिंग है और एंड क्या है, y इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यहाँ एंड है। और पैरेलल टू y मीन जो स्ट्रिप थी वो इस प्रकार से थी, बन गई ना स्ट्रिप। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से पता चलेगा इन 2 पॉइंट से। स्ट्रिप्स पैरेलल टू y लेनी है तो यहाँ से स्टार्ट करो, कहाँ से स्टार्ट हो रही है पट्टी, y इज इक्वल टू एच से, और यहीं से इसी प्रकार से लिमिट का फॉर्मेशन होता है, और एंड कहाँ हो रही है, y इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर। अब ये जो स्ट्रिप बनती है इसलिए जो ये स्टार्ट होता है ये तो होती है लोअर लिमिट, जैसे ये स्टार्ट क्या है y इज इक्वल टू एच और एंड क्या है y इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो y इज इक्वल टू एच, y इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब इस पूरे एरिया को ऐसे ही पट्टियों में स्ट्रिप्स में डिवाइडेशन कर दीजिए। तो स्ट्रिप स्टार्ट कहाँ से हुई, यहाँ से एच इज इक्वल टू 0 से, और कहाँ तक, ये तो चलती जाएंगे ऐसे इनफाइनाइट तक, तो ये बन गई लिमिट एच इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। अब मुझे इसका ऑर्डर चेंज करना है, ऑर्डर चेंज करना है तो फंक्शन पर तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ मैं। डी एच डी वाई तो मैंने डी वाई डी एच बना दिया, ऑर्डर चेंज किया तो लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, इक्वल नहीं होते, लिमिट्स चेंज कैसे होंगी, फिर वही रूल 2 पॉइंट्स में। मूव फ्रॉम राइट, फर्स्ट वी विल लेट एच, तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एच, और स्ट्रिप्स पैरेलल टू एच एक्सिस। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं भी स्ट्रिप्स का लिमिट का डिवाइडेशन करने के लिए। तो वही शेप है मेरे पास, उसी में देख लीजिए या नहीं बना लीजिए, y इज इक्वल टू एच, y इज इक्वल टू इनफाइनाइट, h इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और ये वो एरिया था जो फाइंड करना है, बाउंडेड है ना, यही एरिया पूरा, इसी की लिमिट्स यूज की ली है ना सारी, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिप्स यूज की ली है और यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये एरिया यूज किया है, हमने एरिया फाइंड कर लिया ना, कौन सा एरिया यूज किया है इस वे से। बट अब चेंज करना है, अब जो स्ट्रिप्स हैं वो पैरेलल टू क्या रखनी है, एच, तो एच एच ये रही पैरेलल, मतलब स्ट्रिप्स ऐसे बना देनी है, स्ट्रिप्स ऐसे बना दी, तो स्ट्रिप्स यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ एंड हुई, जहाँ स्ट्रिप स्टार्ट हुई वहाँ आप देख सकते हैं कौन सी लाइन है, एच इज इक्वल टू 0 है। यहाँ जहाँ एंड हुई वहाँ आप देख सकते हैं क्या है, एच इज इक्वल टू वाई या वाई इज इक्वल टू एच। अब पहले लिमिट मुझे यहाँ बतानी है, यहाँ बतानी है तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने से यहाँ लिमिट एक्स लिया है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है 0 से और एंड वाई पर। अब मैंने पूरे एरिया को स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, तो स्ट्रिप की स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है वहाँ क्या है y इज इक्वल टू 0, और जहाँ स्ट्रिप का एंड हो रहा है वहाँ y क्या है इनफाइनाइट। तो ऑर्डर चेंज हो गया डी एक्स डी वाई डी एक्स में, और इसी प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन का डबल इंटीग्रेशन में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अब अपने इसका सोल्यूशन भी कर सकते हैं, तो ये नोट कर लीजिए, फिर अपने इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये तो ऑर्डर ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। तो चेंज होने के बाद अब इसका अपने देते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन करने में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, और पूरे इसमें एक्स है नहीं, इट मीन दैट इट इज़ कांस्टेंट फॉर एक्स, कांस्टेंट है कांस्टेंट वैसे ही रहता है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो साथ में एक्स लग जाएगा।
और इस पर लिमिट x ली है कितनी 0 to y। जब सोल्यूशन हो जाए तो 0 to इन्फाइनेट y लिमिट लगा कर विद रिस्पेक्ट टू y लग देना। अब लिमिट ये लिमिट x ली पुट ली ये देखना, तो x ले प्लेस में पुट होगी, x ली पहली वैल्यू y पुट करें ले y कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा e⁻y। दूसरा x 0 पुट करें ले पूरा 0 हो जाएगा। अब बड़ा सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, e⁻y इंटीग्रेशन माइनस e⁻y 0 to इन्फाइनाइट। अब लिमिट पुट करनी है, पहले अपर लिमिट पुट करें ले माइनस e⁻∞, फिर लोअर लिमिट पुट करें ले, नेगेटिव आता है बीच में और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा e⁻⁻0 1/e⁻∞ और 1/e⁻0। ये माइनस यहाँ आएगा, सॉरी ये इन्फाइनाइट ये 0 और वो 1, आंसर आएगा वो 1। ये हो गया अपना चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में 2-3 बार आया हुआ है, तो इसी बेस पर अपने इसलिए सारे क्वेश्चन कर सकते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के लिए। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं और आई होप आप लोग ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन में इसका डाउट कमेंट कर सकते हैं और फिर प्रयास करेंगे इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपका जो डाउट है उस पर एक वीडियो बनाकर उसे क्लियर किए जाएँ। तो अब अपने इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। ये दो तरफ हैं, y² = 4x, x² = 4y और फाइंड करना है एरिया बाउंडेड बाय टू तरफ्स। ये लग रहा होगा कि बड़ा सिंपल सा है, +2 में भी आता है, +2 में भी क्वेश्चन आता है एरिया बाउंडेड बाय टू तरफ्स। तो अपने पास यहाँ इसको सोल्यूशन करने के 2 वे हैं, एक वो वे जो अपने BSc में कर रहे हैं, एक वो वे जो अपने +2 में किया है। अपने देखते हैं दोनों ही वे। पहले इन दोनों का डायग्राम बनाते हैं और वी नो दैट y² = 4x इज ए पैराबोला और x² = 4y इज ऑल्सो ए पैराबोला। इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y² = 4x और x² = 4y। यहाँ से x y²/4 यहाँ पुट कर देंगे, x² y/4/16 4y, y/4 64y ट्रांसपोर्ट करते इधर ले, y कॉमन रिमेनिंग इज y³ - 64। इस 0 से y 0 और यहाँ से y 4। y 0 पुट करने पर यहाँ x 0 और y यहाँ 4 पुट करने पर 4² 16/4 4, तो 0 0 एंड 4 4। अब बताना क्या है, एरिया बाउंडेड बाय तरफ। तो इन दोनों तरफ ने बाउंडेड जोन साथ लिया ये एरिया। अब हियर वी हैव 2 मेथड्स, फर्स्ट डबल इंटीग्रेशन एंड सेकंड सिंपल इंटीग्रेशन अलॉन्ग क्लास 12th। तो पहले डबल से देखते हैं। ये एरिया है तो डबल में मैंने बताया आपके पास 2 वे हैं। फंक्शन तो यहाँ अभी पता नहीं है तो छोड़ देते हैं, नहीं पता भी कौन सा यूज़ करें। जब नहीं दिया तो यहाँ कोई फंक्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा क्या dx dy कांस्टेंट के हिसाब से, या dy dx। तो लिमिट दो हिसाब से बना लेंगे भी dx dy है तो लिमिट उस हिसाब से और dy dx है तो लिमिट उस हिसाब से। जैसे मैंने ये बनाया तो यहाँ रूल ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y और स्ट्रिप्स पैरेलल टू y, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ मेरे को लगा स्ट्रिप्स पैरेलल टू y रहेंगी बाउंडेड एरिया में, ये स्ट्रिप बनेगी मेरी। यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर स्ट्रिप एंड हो गई। dy की बात करें ना पैरेलल टू y, तो यहाँ लिमिट y की आएगी तो y पर दे दो। यहाँ y कितना है
ये इस पैराबोला पर है तो y कितना है x²/4, और इस पर है तो एंड पर यहाँ y कितना है √4x। तो यहाँ स्टार्ट में x²/4 और एंड में 4 रूट हो गया 2√x। और अब स्ट्रिप्स पूरे एरिया को स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दो। तो स्टार्टिंग स्ट्रिप यहाँ है जहाँ x 0 है, और एंड स्ट्रिप यहाँ है जहाँ x कितना है 4 है। अब सॉल्यूशन करें ले तो यहाँ कुछ नहीं है, कांस्टेंट 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो कांस्टेंट था y, लिमिट x²/4 2√x, लिमिट 0 to 4x रह जाएगी अब, और dx रह जाएगा। y की लिमिट पुट कर देते हैं 0 to 4। फर्स्ट ऑफ ऑल y इज 2√x, देन माइनस y इज x²/4 dx। अब तो सिंपल बन ही लिया, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है और फिर x की लिमिट पुट कर देनी है, सोल्यूशन हो जाएगा। अब देख लिए स्टार्ट क्या किया था, डबल इंटीग्रेशन, यहाँ क्या रह गया सिंगल इंटीग्रेशन। यही तो 12th क्लास का टॉपिक था अपना। तो 12th में जो इंटीग्रेशन बनता है सिंपल वो डबल से ही बनता है। डबल क्लास सोल्यूशन करके उसको फर्स्ट में कन्वर्ट किया हुआ है और यहाँ से डायरेक्ट कर लेता है। तो ये डबल से सोल्यूशन कर सकते हैं अपने 12th वाले जितने भी क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड बाय 2 क्लास, मतलब अपने डबल से भी सोल्यूशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है तो उनको उसी से करना है जैसा उसने दिया है, तो इसमें डबल इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। और इसको यदि अपने अकॉर्डिंग टू क्लास 12th करना होता, सिंपल इंटीग्रेशन करना होता, सिंपल इंटीग्रेट करना होता तो क्या करते, तो डबल का यूज नहीं करते, तो स्ट्रिप का एडिशन इस प्रकार से नहीं होता। 12th में वो एक रूल कहता है कि जब भी पट्टियों का विभाजन करते हो तो उस पट्टी की स्टार्टिंग x या y से होनी चाहिए। तो यहाँ से इस तरह से मिलाते, यहाँ मिलाते तो यहाँ पॉइंट बनता 40। ये अकॉर्डिंग टू प्लस 12th डबल वाला यहाँ पूरा हो जाता। यहाँ आप सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं इसका और सोल्यूशन कर देते। यहाँ मिलाते तो पहले ये पूरा एरिया फाइंड करते, ऐसे ही पट्टियाँ विभाजन करते, इसको छोड़ देते एक बार, पूरे की पट्टी स्ट्रिप इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। अब तो स्ट्रिप स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, अकॉर्डिंग टू 12th बात कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हुई है dx, स्टार्ट हुई है तो वहाँ से पता लग गया, यहाँ से स्टार्ट की है मैंने x एक्सिस से, तो dx का यूज किया जाएगा। dx का यूज किया जाएगा तो वैल्यू y वाली आने वाली है साथ में, y dx होता है। स्टार्ट यहाँ से हुई है, ज़्यादातर एंड यहाँ हुई है। यहाँ y कितना है, यहाँ से कहाँ से y इज इक्वल टू 4x से y आने वाला है। स्ट्रिप का पट्टी का स्टार्टिंग पॉइंट x एक्सिस तो dx यूज किया है, एंड यहाँ पर हुई है, यहाँ पर एंड हुई है कौन से पैराबोला पर, y इज इक्वल टू 4x पर, तो यहाँ से y आने वाला है। अब इस पूरे एरिया को डिवाइडेशन करो स्ट्रिप्स में, ये कंप्लीट जो एरिया था डिवाइड इन स्ट्रिप्स हो चुका है। तो स्टार्टिंग स्ट्रिप कहाँ है 0 पर और एंड कहाँ पर है 4 पर। बट ये तो ज़्यादा हो गया, हमें तो सिर्फ इतना एरिया बताना था, ये वाला एरिया तो नहीं चाहिए, ये तो चाहिए ही नहीं, ये तो एक्स्ट्रा है। अब इसको सबट्रैक्ट कर देंगे जो एक्स्ट्रा है। अब सिर्फ इसकी स्ट्रिप डिवाइडेशन, ये हो गया इस एरिया का जो हमें डिवाइडेशन माइनस करना है उस एरिया का स्ट्रिप होगी। स्टार्टिंग लिए भी कहाँ से x से, तो इसमें भी dx साथ में y आने वाला है। बट इस पार्टी की जो एंड पॉइंट है वो ये है, ये कौन सा पैराबोला x इक्वल टू 4y, यहाँ से y आएगा। अब जो माइनस करना है वो एरिया यहाँ पूरा देख लिए, इसकी स्ट्रिप्स भी 0 से लेकर कहाँ तक 4 तक, लिमिट दोनों पे सेम है तो कंबाइन कर देते हैं 0 से 4 dx। यहाँ y पहले ये आने वाला है
कितना बनेगा भाई, यहाँ से 2√x माइनस यहाँ से भाई क्या बनने वाला है, तो देख लीजिए दोनों से सेम बना है नहीं बना, इतनी बात तो है। तो वो डबल इंटीग्रेशन का सोल्यूशन करते ही तो क्या बनाया है, सिंपल बनाया है। तो अपने एरिया बाउंडेड बाय 2 क्लब्स जो बीएससी में है या 12th में है दोनों, तो अपने डबल इंटीग्रेशन से भी सोल्यूशन कर सकते हैं। और आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी तो डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इसलिए डाउट बता सकते हैं और प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके जो डाउट हैं वो सॉल्व करवा दिए जाएँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और ये जो टॉपिक है ये कंपटीशन में आता है, तो आई होप ये आपके लिए बड़ा यूजफुल रहेगा। और इसे बीएससी की बुक से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, 12th वाली बुक्स में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।